हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब लोग। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स, लेक्चर नंबर 11. टुडे we discuss the mathematical property that is called integration. In the previous lecture we also study about the differentiation. So what is differentiation and how to that differentiation property is utilized in mathematics. So today we discuss about integration property. What is the integration? How the integration will be utilized in physics? So we discuss one by one. So we know where, say in that case, integration as a differentiation in reverse. It means integration is reverse of differentiation. Integration is as a reverse of differentiation. We know very well what is the differentiation. Suppose we differentiate the function y. We know very well y equal to x here. If we differentiate that function, so we write dy by dx, power rule, power forward and power minus 1. So power forward 2 and x 2 minus 1, that is power 1. That's why the differentiation of x here, that is 2x. Okay. And integration is reverse this process, and we say that integration of 2x, that is x here. So we say that generally x here differentiation, in that case we say that x here differentiation is 2x and 2x integration is x here. x here का डिफरेंशिएशन बेटा क्या आया 2x, और 2x का आपके पास जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा x here आएगा. That's why we say that the integration is reverse process of differentiation. How to that reverse process will be occur? So we study about one by one. So say that this situation is just a little more complicated. लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी ये कॉम्प्लिकेटेड आते क्यों? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फंक्शन वी कैन डिफरेंशिएट टू गिव द 2x. हियर सम एग्जांपल्स आर x स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन कीजिए तो x स्क्वायर का 2x, 4 कांस्टेंट तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. x स्क्वायर माइनस 15 का कीजिए तो 15 का डिफरेंशिएशन 0 तो भी 2x. x स्क्वायर प्लस 0.5 कीजिए तो भी आपका डिफरेंशिएशन क्या बना 2x, तो भी आपके पास 0. In that case, all these functions have same derivative, that is 2x, because when we differentiate the constant term, we obtain the 0. And when we reverse this process, we have no idea what is the original constant term might have been. So we include in our answer an unknown constant. It means integration is reverse process of a differentiation, but that integration process cannot explain about the constant term. That's why we utilize a unknown constant that is denoted by C, and that C is called constant of integration, और उसी चीज को आप constant of integration कहते हैं. It means we state that integral of 2x का इंटीग्रल क्या होगा x स्क्वायर प्लस c. अब वो c कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो इंटीग्रेशन कैन नॉट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट. तो ये कांस्टेंट के कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं करता. सो व्हेन वी वांट टू डिफरेंशिएट ए फंक्शन दैट इज y x, it means y is function of x, we use the notation that is d by dx. We know very well, but write d by dx किसका डिफरेंशिएशन करना है y x का.
इन सिमिलर वे, तो आप नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या करोगे, dy dx of yx. But in similar way, when we want to integral a function, we use a special notation. और यदि आपको एक इंटीग्रेशन करना है तो आप स्पेशल नोटेशन यूटिलाइज करोगे, क्या, इंटीग्रेशन सिंबॉलिक, दैट इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रल, yx का करना है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के, तो इनटू में क्या आएगा आपके पास, dx आएगा। तो ये जो सिंबल है दैट इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन एंड दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल साइन, और इस चीज को आप क्या कहते हैं, इंटीग्रल साइन कहते हैं। टू इंटीग्रेट द 2x, यदि हमें 2x का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन 2x किसके रिस्पेक्ट में करना है, dx के, यानी कि x के रिस्पेक्ट में, तो dx। तो पहली टर्म क्या है, ये इंटीग्रेशन साइन है, जो 2x है वो क्या कहलाएगा, दिस टर्म इज कॉल्ड इंटीग्रेंड, उस टर्म को क्या नाम देंगे, इंटीग्रेंड। और जो dx है वो क्या कहलाएगा, दे मस्ट ऑलवेज बी ए टर्म ऑफ फॉर्म ऑफ dx, और वो किस फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट होगा, dx की फॉर्म में होगा। और जो c आपके पास है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इनके भी बेटा रूल्स होते हैं, उन रूल्स को 1 बाय 1 फॉलो करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है, ओके। अब हम नोट करते हैं कुछ प्रॉपर्टी को। Along the integral sign there is a term of the form of dx, इंटीग्रेशन साइन के साथ आप एक फॉर्म और यूज करेंगे dx, which must always be written and which indicate the variable involved in the case of x। तो वो ये बताएगा कि आपके पास जो वेरिएबल है वो कौन है, तो आपके पास x आपके पास क्या है, वेरिएबल आपके पास, ठीक है। And we say that 2x is being integrated with respect to x, इसका मतलब 2x का इंटीग्रेशन करना है और किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। and the function being integrated, जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेंड, और उसे आप इंटीग्रेंड करेंगे। एंड टेक्निकली इंटीग्रल ऑफ दिस सॉर्ट आर कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल, और इस टाइप की टेक्निक का जो इंटीग्रल यदि आप करते हैं तो वो इनडेफिनिट इंटीग्रल कहलाएगा। तो देखिए नेक्स्ट, सो वी स्टार्ट द इंटीग्रेशन। तो हमने क्या स्टार्ट किया है, इंटीग्रेशन स्टार्ट किया है, तो उसी को देखते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वी नो, if we know the derivative of a function, यदि हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पता है and want to find original function, और हमें ओरिजिनल फंक्शन चाहिए, तो from which the derivative has been produced, we have to process the integration, or that is also called anti-differentiation, and that is the symbol of integration। यदि आपको किसी का डेरिवेटिव पता है और आप उसका ओरिजिनल फंक्शन निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। सो वी नो dy अपॉन dx क्या होगा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो मुझे अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो dy dx मल्टीप्लाई में चला गया, तो क्या बचा मेरे पास, एफ एक्स dx इक्वल टू dy, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, तो dy का इंटीग्रेशन तो y आ गया, और फिर इंटीग्रेशन का सिंबल एफ एक्स dx, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx करोगे तो स्मॉल एफ एक्स क्या बन गया, कैपिटल फंक्शन, और प्लस में c क्या आएगा आपके पास, कांस्टेंट आएगा, ठीक। अब कुछ सिंबॉलिक फॉर्म की बात कर लेते हैं, कुछ जनरल कंसेप्ट। इंटीग्रेट का मतलब होता है फाइंड द इंटीग्रल, किसी भी चीज का इंटीग्रल कैलकुलेट करना। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx, इसके अंदर जो एफ एक्स होगा वो एफ एक्स क्या कहलाएगा, इंटीग्रेंट कहलाता है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx, इसमें जो x है वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन वेरिएबल कौन है, x है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx, इसका मतलब है हमें इंटीग्रल करना है एफ एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के। इंटीग्रेशन
इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, इंटीग्रल फाइंड करने का प्रोसेस। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एनी रियल नंबर सी विच इज ए कांस्टेंट, और कोई भी रियल नंबर जो कांस्टेंट हो वो क्या कहलाएगा आपके पास, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाएगा। So we discussed different theorems of integral and its formula. तो हमें डिफरेंट टाइप के इसके फॉर्मूले देखने हैं और इन फॉर्मूलों को कैसे कुछ न्यूमेरिकल पर्पस में कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं, इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सी यू डी एक्स। integration of cu dx, c is a constant, so constant is outside the integration c, and integration of u dx, constant बाहर आ जाएगा और u dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ a dx, इंटीग्रेशन ऑफ a dx, a is a constant, तो a आपके पास बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये आपके पास बाहर, और फिर आपके पास ए डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपके पास, ए एक्स प्लस सी। ए डी एक्स का इंटीग्रेशन यानी कांस्टेंट इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए एक्स प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन ऑफ यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू प्लस ऑन डी एक्स, तो इसका सेपरेट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स plus minus integration of w dx plus minus so on, but that n is not equal to -1, लेकिन n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, पावर रूल, यहाँ पावर रूल में क्या होगा, पावर में +1 टोटल पावर से डिवाइड, तो x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो पावर रूल आपके पास क्या होगा, यहाँ पे पावर में +1 टोटल पावर से डिवाइड। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, पावर फॉरवर्ड पावर -1, यहाँ होगा पावर में +1 डिवाइड बाई टोटल पावर, जो नई पावर आपके पास बनी वो। ठीक है, एंड इन दैट केस आल्सो n is also not equal to -1, -1 के रूल्स के केस में ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर x, एक्सपोनेंशियल की पावर x का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर x प्लस सी रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ ax dx, इंटीग्रेशन ऑफ ax, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx वेयर इज ए कांस्टेंट, इन दैट केस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/log a की पावर x प्लस सी। बेटा ये अभी कुछ फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को यूटिलाइज करके वन बाय वन हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे, तो अभी के लिए आपको इन फॉर्मूलों को लर्न करना है। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस cos x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx sin x प्लस सी वेयर सी इज इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ secant square x dx tan x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ cosecant square x dx माइनस cot x प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ secant x tan x dx, so integration of secant x tan x, that is secant x, integration of cosecant x cot x dx, that is minus cosec x, integration of tan x dx log secant x, integration of cot x dx log sin x modulus में, integration of sin square x dx 1/2 x minus 1/4 sin 2x, integration of cos square x dx 1/2 x plus 1/4 sin 2x plus c, integration of uv dx equal to
फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, u इंटू वी का फॉर्मूला है यहाँ, फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो ये कुछ फॉर्मूले आपके पास है जो आपको लर्न करने हैं ताकि हम इन फॉर्मूले के बेस के ऊपर इजीली हम न्यूमेरिकल पोर्शन को सोल्व कर सके। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की कंप्लीट की पावर n, तो क्या रूल लगेगा, ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस वन, पावर में प्लस वन, टोटल पावर से डिवाइड, और वेरिएबल कौन है x, तो x के साथ जो टर्म है डिवाइड बाई a, एंड दैट फॉर्मूला इज आल्सो एप्लीकेबल व्हेन n इज नॉट इक्वल टू -1। 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रल, तो क्या होगा 1 बाई ए लॉग ए एक्स प्लस बी प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो क्या होगा एक्सपोनेंशियल ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, क्या बनेगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी बाई ए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, क्या बनेगा साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस सी। तो ये कुछ आपके पास टोटल 23 फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प को यूटिलाइज करके हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल इजीली सोल्व हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज इंटीग्रेशन? It is the reverse of differentiation. We know very well. We discuss about it. And different theorems and rules of the integration. 23 ये आपके पास rules है. आपको इन rules को याद कर लेने हैं. In the tomorrow lecture, how these rules is utilized to solve the numerical. और कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इन रूल्स को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।